اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت ہم سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے میں نے سورہ بقرہ کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا، پھر اس کے بعد اس کے فضائل اور خواص سے بھی آپ کو آگاہ کیا، اور گزشتہ نشست میں میں نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت یعنی الف لام میم کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور یہ عرض کیا کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور جو کہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، اور ان کی اہمیت میں نے واضح کی۔ علماء کا خیال اور بیان اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اس کا تعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو آج کی نشست میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کا تعلق کس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے اور اس کے 19 حروف سے ہے۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ میرا بیان نہایت ہی غور کے ساتھ سن رہے ہوں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ ویسے تو یہ قرآن کریم کی کم و بیش 6666 آیات میں سے ایک آیت ہے، اور سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، یعنی سورہ علق پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھنے کا حکم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ ناظرین، ایک طرح سے یہ معجزہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے جو قرآن مجید کے نزول کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، چنانچہ اس کا ذکر از بس ضروری ہے۔ ناظرین، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی تعداد گنیں تو یہ پوری 19 بنتی ہے۔ بسم یعنی با سین میم یہ 3 ہیں، اللہ کے 4 حروف ہیں، الرحمن کے 6 اور الرحیم کے بھی 6، تو یہ کل 19 حروف ہوتے ہیں۔ عددی اعتبار سے ایک سب سے پہلا ہندسہ ہے جبکہ 9 سب سے آخری، یعنی اول بھی تو آخر بھی تو۔ پورا علم ہندسہ اس 1 اور 9 کے درمیان موجود ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ 19 نعت تقسیم کنندہ ہے۔ مثلا 20 کو 2، 4، 5 اور 10 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور 18 کو 2، 3، 6 اور 9 کے ساتھ تقسیم کیا جا سکتا ہے، مگر 19 نعت تقسیم کنندہ ہے۔ 19 کے ہندسہ میں 1 دہائی اور 9 اکائیاں ہیں۔ گنتی میں مکمل قدرتی ہندسہ 1 سے کم اور 9 سے زیادہ نہیں ہے۔ کوئی بھی فلاسفر آج تک 9 سے زیادہ بڑا کوئی بھی ہندسہ نہیں لا سکا اور نہ ہی لا سکے گا۔ پھر 9 کو دوسرے اعداد کے ساتھ جتنی بار بھی ضرب دیں گے حاصل جمع 9 ہی آئے گا۔ مثال کے طور پر 1 کو 9 کے ساتھ ضرب دیں تو جواب 9 آئے گا، 9 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں تو جواب 18 آتا ہے، اور 8 اور 1 کو جمع کریں گے تو جواب پھر 9 ہی آئے گا۔ اسی طرح 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں تو جواب 27 آتا ہے، اور 2 کو 7 میں جمع کر دیا جائے تو یہ بھی 9 ہی حاصل آتا ہے۔ اسی طرح 9 کو 4 کے ساتھ ضرب دیں تو 36 آتا ہے، اور 3 کو 6 میں جمع کر دیا جائے تو یہ جواب بھی 9 ہی آتا ہے۔ 9 کو 5 کے ساتھ ضرب دے کے دیکھ لیں
45 आएगा, और 4 को 5 में जमा करें तो फिर जवाब 9 ही आएगा। 9 को 6 के साथ ज़रब दें तो 54 आता है, 5 को 4 में जमा कर दिया जाए तो फिर जवाब 9 ही है। 9 को 7 के साथ ज़रब दें तो 63 आता है, और 6 को 3 के साथ जमा करें तो फिर जवाब 9 ही है। इसी तरह 9 को 8 के साथ ज़रब दें तो 72 आता है, और 7 को 2 में जमा कर दिया जाए तो जवाब फिर 9 ही है। 9 को 9 के साथ ज़रब दें तो 81 आता है, और 8 को फिर 1 के साथ जमा कर दिया जाए तो फिर जवाब 9 ही है। अल्लाह हाज़िल क़ियास, आप आगे चलते चले जाएं, हमेशा जवाब जो है वो 9 ही रहेगा। अरबी के हरूफ तहज्जी 28 हरूफ पर मुश्तमिल हैं। इनके आधे यानी 14 हरूफ हैं जो 29 सूरतों के शुरू में आते हैं, और ये 14 हरूफ क्या हैं? अलिफ, हा, रा, सीन, सौद, तौ, ऐन, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, या। और मजमूई अल्फाज जो इनसे बनते हैं वो हैं अलिफ, लाम, मीम, तौ, सीन, मीम, अलिफ, लाम, रा, ऐन, सीन, काफ, काफ, नून, सौद, तौहा, हामीम, यासीन, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम, ऐन, अलिफ लाम मीम सौद, काफ हा या ऐन सौद, हामीम ऐन सीन काफ। ये भी तादाद में 14 ही हैं। अब जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, ये मजमूई अल्फाज 29 सूरतों के आगाज में आते हैं। तो इस तरह अगर आप इन 29 को जमा करें, यानी 29 को 14 फिर 14 से जमा करें, यानी 14 हरूफ तहज्जी, और 14 जो उनसे मुरक्कब यानी मजमूई अल्फाज बनते हैं उनके साथ जमा करें, और फिर 29 उसमें जमा कर दिया जाए, जो कि तादाद है सूरतों के पहले आने की। जिन सूरतों के पहले आए वो 29 हैं, तो ये कुल जो है ना 57 बनते हैं, और ये हासिल ज़रब है 19 ज़रब 3 का। कुरान करीम में 19 का जिक्र मौजूद है। पारा नंबर 29 सूरह मुदस्सर आयत नंबर 27 से 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमा अदराका मा सकर ला तुबकी वला तजर लव्वाहतुन लिल बशर अलैहा तिसअता अशर। और तुझे क्या खबर कि दोज़ख क्या चीज़ है, ना वो बाकी रखती है ना छोड़ती है, आदमी की खाल को झुलसा देती है, और इस पर 19 फरिश्ते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दारोगे फरिश्ते हैं, और ये गिनती हमने काफरों की जांच के लिए रखी है। तफसीर इब्ने कसीर में हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत नकल की है। वो फरमाते हैं, जहन्नम के 19 दारोगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं। हर हर्फ हर फरिश्ते से बचाव का सबब बन जाता है। अब अगर कोई ये कहने या सोचने की जिसारत करे कि कुरान पाक एक इंसानी तसनीफ है, तो इसको इस 19 के अदद से जान छुड़ाना होगी, जो कि नामुमकिन है। सूरह मुदस्सर की इस आयत नंबर 30 का 19 और 19 हरूफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की निस्बत का तारीखी तौर पर तज्जिया इसी शक्ल में मुमकिन है कि अगर हम नुज़ूल कुरान का मुताला करें। आपको इल्म है कि सबसे पहले जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सूरह अलग की चंद आयत लेकर नाज़िल हुए। सूरह अलग कुरान करीम के इख्तिताम से 19वां सूरा है, और इस सूरा में 19 आयत हैं। इससे कबल ताऊस की तफसीलात का जिक्र करते हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये पहले मैंने कहीं अर्ज़ किया है, अगर नहीं तो फिर इंशाअल्लाह आइंदा किसी नशिस्त में अर्ज़ कर दूंगा, कि जिसके मुताबिक सूरह अलग की आयत के साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तालीम दे दी गई है। गोया सूरह अलग
का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 आदाद के साथ गहरा ताल्लुक है। दूसरी मर्तबा सूरह नंबर 68 अल-कलम की चंद आयत नाज़िल हुई। तीसरी मर्तबा सूरह नंबर 63 अल-मुज़म्मिल की चंद आयत नाज़िल हुई। चौथी मर्तबा सूरह मुदस्सिर की 30 आयत नाज़िल हुई, जिसकी 30वीं आयत जो मैंने पहले बयान कर दी है में 19 का जिक्र है। इसके बाद कुरान मजीद की पहली मुकम्मल सूरह नाज़िल हुई जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है। इससे हम ये नतीजा भी अखज़ कर सकते हैं कि सूरतुल मुदस्सिर की 19 का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदद 19 की तरफ इशारा है। चुनांचे ये 19 हरूफ एक मुशाहदा है जो इस बात की गवाही देते हैं कि कुरान मजीद किताबुल्लाह है। नाज़रीन, कुरान मजीद में 114 छोटी बड़ी सूरतें हैं जो बज़ाते खुद 19 को 6 से ज़रब देने का हासिल है, यानी 19 ज़रब 6 बराबर होता है 114 के। और इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तादाद भी 114 है। सूरह तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है और सूरह नमल में बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है। अगर सूरह तौबा के आगाज में भी बिस्मिल्लाह होती तो इसकी कुल तादाद 145 हो जाती, जो कि 19 पर तकसीम न होती। गौर करने पर यह बात वाज़ेह होती है कि तरतीब कुरानी और मतन कुरान सब अल्लाह का अजीब शाहकार है। कुरान मजीद की 29 सूरतों की इब्तिदा में हरूफ मुक़त्तात आए हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, ये हरूफ जितनी बार इस सूरह में आए हैं इनका मजमूआ 19 पर पूरा तकसीम हो जाता है। मिसाल के तौर पर चंद बातें अर्ज करूंगा कि सूरह मरियम के आगाज में काफ हा या आइन साद है, यानी ये 26 जमा 122 जमा 345 जमा 148 जमा 137 ये होता है 798, जो कि 19 पर पूरा तकसीम हो जाता है। हरूफ मुक़त्तात कुरान मजीद की 29 सूरतों के आगाज में आए हैं। जब हम इन हरूफ को मज़कूरा सूरतों से अलग अलग जमा करते हैं तो हर हर्फ की तादाद का मजमुआ 19 पर पूरा तकसीम हो जाता है। मसलन सूरह काफ में हर्फ काफ की गिनती करें तो काफ की तादाद 57 है, जो कि 19 ज़रब 3 का मजमुआ है। और सूरह शूरा जिसके हरूफ में ऐन सीन काफ आया है, इसमें भी हर्फ काफ की तादाद यही है, यानी 19 ज़रब 3। अगर इन दोनों सूरतों में हरूफ काफ की तादाद जमा करें तो ये 57 + 57 यानी 114 होती है, यानी 19 ज़रब 6 का मजमुआ। हाँ, कुरान मजीद में सूरतें भी 114 हैं जिनका ऊपर जिक्र किया जा चुका है। अब अगर सूरह काफ की आयत नंबर 13 व आदम व फिरौन व इख्वान लूत पढ़ा जाए तो इसमें मालूम होगा कि इस छोटी सी आयत में भी अल्लाह ताला ने किस तरह अल्फाज और हरूफ तरतीब दिए हैं। इस आयत में इख्वान से मुराद फिरौन और लूत के लोग हैं। कुरान मजीद में 12 मरतबा कौम लूत के अल्फाज आए हैं सिवाय सूरह काफ के, जहां कौम लूत को इख्वान लूत कहा गया है। अगर इख्वान लूत की जगह कौम लूत के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते तो हर्फ काफ की तादाद 1 बढ़ जाती और 19 पर तकसीम होने वाला अदद ना होता। इस तरह हर्फ नून जो कि सूरह अल-कलम नंबर 68 के शुरू में है, इस सूरह में नून की तादाद 133 है और जो कि 19 ज़रब 3 का मुतज़र्रब है। हर्फ सौद 3 सूरतों के शुरू में आता है। सूरत नंबर 7 अल-आराफ, सूरह नंबर 19 मरियम और सूरह नंबर 38 सौद, इन तीनों सूरतों में हरूफ काफ की तादाद 152 है और ये हासिल ज़रब है 19 ज़रब 8 का।
یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. ان تفاصیل کی مدد سے باقاعدہ ایک جدول تشکیل دیا گیا ہے اور دیا جا سکتا ہے جو 19 کی اہمیت واضح کرتا ہے، اور اس سے قرآن پاک کا بے مثال ہونا ثابت ہوتا ہے. یہ آگے چل کر پھر میں انشاءاللہ العزیز جب متعلقہ آیت آئے گی تو پھر تفصیل عرض کروں گا. آج کا بیان تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. امید ہے آپ محسوس نہیں کریں گے اور آپ نے انتہائی غور سے اس کو سن لیا اور سمجھ لیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.